تو اس کے پیچھے دیکھیں یہ سائنس ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو اسلام میں ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ڈالا ہوا ہے، اس میں ہماری لیے ہی حکمت ڈالی ہوئی ہے. اچھا جی، اس کے بعد نمبر 5 پہ آ جاتی ہے. آپ نے ایک وائٹامن کی ٹیبلٹ لینی ہے جو کہ فری ملتی ہے دنیا میں، اور اسے بہت سارے لوگ اگنور کرتے ہیں، لینا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، اور وہ وائٹامن کی ٹیبلٹ ہے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ شیخ. بہت سارے لوگ اپنا ویٹ لاس تو کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ویٹ لاس کے ان کی اسکن لوز ہو جاتی ہے، ان کی اسکن سیگ کرنا شروع ہو جاتی ہے، ان کی اسکن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، فیس پہ رنکلز آ جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا یہ کنڈیشن ریورسیبل ہے؟ یہ کنڈیشن بالکل ریورسیبل ہے. جیسے دیکھیں الحمدللہ کہ یہ کنڈیشن ریورسیبل ہے. وہ بھی پوائنٹس میں آج ان کو بھی ایڈریس کروں گی. اچھا جی، ہماری اسکن کو بیوٹیفائی کرنے والا، ہماری اسکن کی الاسٹیسٹی کو ریسٹور کرنے والا ایک پروٹین ہوتا ہے ہماری باڈی میں جسے کولیجن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کی اسکن پہ رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو لوگ ویٹ لاس کے دوران بہت زیادہ جلدی کوئک ریپڈ ویٹ لاس کرتے ہیں انہیلدی ڈائٹ فالو کر کے، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کی اسکن جو ہوتی ہے وہ سیگ کرنا شروع ہو جاتی ہے، پانی کا خیال نہیں رکھتے، ایکسرسائز کا خیال نہیں رکھتے. میں ساری چیزیں ابھی آپ کو بتاؤں گی. اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ آپ اور ایسی چیزیں جو باڈی میں جا کے سوزش کرتی ہیں، انفلیمیشن کاز کرتی ہیں. تو ایسے 5 پوائنٹس میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے فکس کرنے سے ہم اس کنڈیشن کو ریورس کر سکتے ہیں. اور پھر اینڈ میں آپ کو تھوڑا سا ڈائٹ کے بارے میں بھی، ڈائٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیں گے. نمبر 1 پہ میں بات کروں گی شوگر کی اور انسولین ریزسٹنس کی. شوگر کی اور انسولین کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں شوگر ہوتی ہے وہاں وہاں انسولین ہوتی ہے. ویسے انسولین کو ہم نے نا ولن بنایا ہوا ہے. انسولین اتنا برا نہیں ہے، انسولین ہارمون. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جو رسپانسبلٹی دی ہے، اس کو یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ جب ہماری بلڈ میں گلوکوز کا لیول ہائی ہو تو وہ نکلتا ہے ہمارے لبلبے سے، ہمارے پینکریاس سے، اور وہ آتا ہے اور وہ بلڈ سے شوگر کو لے کے، گلوکوز کو لے کے سیلس کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے. آپ کا جو بلڈ گلوکوز لیول ہوتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے اور سیلس کو انرجی مل جاتی ہے. اچھا گڑبڑ کہاں ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے اوور برڈنائز کر دیتے ہیں اپنی انہیلدی ہیبٹس سے. ہم اسے اوور برڈنائز کر دیتے ہیں. ہم اتنا گلوکوز باڈی میں ڈالتے ہیں کہ وہ بیچارہ اس کے رسپانس میں انسولین ہارمون نکلتا رہتا ہے. اب سیلس کی بھی ایک حد ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. لیکن ہم تو کھائے جا رہے ہیں انہیلدی چیزیں کھائے جا رہے ہیں. جو مین کھانے ہیں اس کے علاوہ ہم اسنیکنگ بھی کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ انسولین پہ برڈن آ رہا ہے اور وہ تو بیچاری اس گلوکوز کو سیلز میں ڈالنے کے رسپانس میں نکلے جا رہا ہے اور ہمیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. تو ہم اس کو اوور برڈنائز کر دیتے ہیں اور پھر انسولین کا لیول ہائی ہو جاتا ہے اور انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے. اچھا، اسکن کو کیسے ڈیمیج کرتا ہے یہ اب آپ نے سمجھ لیا کہ بیچارہ انسولین ہارمون جو ہے نا وہ کلپریٹ نہیں ہے، کلپریٹ ہے ہماری انہیلدی ہیبٹس. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. اچھا جی، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کیلوری ڈیفیسٹ، اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ کیلوری ڈیفیسٹ میں رہ کے ہم کوئی بھی انہیلدی چیز بھی لے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے جناب. آپ انہیلدی چیزیں لیں گے تو اس کا ہارمونل رسپانس ڈفرینٹ ہوگا آپ کی باڈی میں. یہ سمجھ لیں غور سے. ٹھیک ہے، تو صرف کیلوری ڈیفیسٹ کافی نہیں ہوتا. کس چیز کے کھانے سے آپ کی باڈی میں ہارمونز کون سے ریلیز ہو رہے ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے، تو ساری ایسی چیزیں جو آپ کی باڈی میں جا کے چینی اور چینی سے بنی ہوئی ساری چیزیں، بیکری آئٹمس، فزی ڈرنکس، بسکٹس، چاکلیٹس، یہ ساری جتنی بھی انہیلدی چیزیں ہوتی ہیں، ویجیٹیبل آئل، اور یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی میں جا کے ڈسٹرکشن کرتی ہیں بہت زیادہ. اور آپ کا جو کولیجن ہوتا ہے نا، انفلیمیشن کاز کرتی ہیں سب سے مین چیز تو. اور پھر کس طرح سے یہ کولیجن کو ڈسٹروائے کرتی ہیں؟ جب ہم شوگر انٹیک بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ جو شوگر مالیکیولز ہوتے ہیں وہ جا کے ہمارے جو یہ کولیجن جو ہوتا ہے، یہ پروٹین ہوتا ہے اسکن کے اندر، جو کولیجن ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کر یہ بائنڈ کر جاتا ہے اور وہاں پر ایک گلائکیشن پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہماری باڈی میں AGEs بننا شروع ہو جاتے ہیں. AGEs کیا ہیں؟ ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کولیجن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام نہیں کر پاتا، کیونکہ کولیجن ہی آپ کی اسکن کو بیوٹیفائی کرتا ہے. کولیجن آپ کی اس کی الاسٹیسٹی کو برقرار رکھتا ہے، ریسٹور کرتا ہے. اچھا، جیسے جیسے آپ کا وزن کم ہوتا ہے کہ وزن کم ہوتا ہے تو آپ کی باڈی شرنک ہوتی ہے نا. تو جن لوگوں کی الاسٹیسٹی، کولیجن اچھا بنا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے ہیلدی ڈائٹ لی ہوتی ہے، تو کولیجن بھی ہوتا ہے باڈی میں برقرار رہتا ہے، الاسٹن بھی برقرار رہتا ہے، الاسٹیسٹی بھی. تو وہ جو ان کی اسکن واپس آتی ہے تو رنکلز نہیں پڑتے. یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کی انہیلدی ہیبٹس ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے،
अच्छा जी, नंबर 2 पे आ जाता है कॉर्टिसोल हार्मोन। जब कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है ना, तो फिर भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, वो भी जाके आपके कोलेजन को डैमेज करता है। अब कॉर्टिसोल को आपको मैनेज करना है, ठीक है। आपको स्ट्रेस को, कॉर्टिसोल जब बढ़ता है जब आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करेंगे? आप स्ट्रेस को नमाज से मैनेज करें, आप स्ट्रेस को एक्सरसाइज करके मैनेज करें, अच्छी नींद लेके मैनेज करें, ठीक है ना। अच्छी नींद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपनी नींद को बेहतर करेंगे, आगे आके मैं बताती हूँ। और अपने स्ट्रेस को आपने मैनेज कैसे करना है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातों पे फोकस ना किया करें, और नाराज़ ना हुआ करें, गुस्सा ना किया करें, जेलस ना हुआ करें, और अगर नाराज़ हो भी जाते हैं तो जल्दी मान जाया करें, जल्दी मना लिया करें, ठीक है ना। तो आपका अपना स्ट्रेस कम होता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो कॉर्टिसोल लेवल खुद ब खुद ही कम होता है, ठीक है ना। मैं तो अपने घर में अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी का मूड ख़राब होता है, बेशक कसूर हमारा ना भी हो ना, तो आप उसको, क्योंकि हम मोहब्बत करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, तो अगर किसी को गुस्सा आ भी रहा है तो उसको बोलते हैं आप, मैं तो कह देती हूँ कि आप भी ये टिप अपने घर में ना ट्राई कीजिएगा। मैं तो कहती हूँ कि आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं ना, क्यों आप अपना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहे हैं। देखें, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, फिर इंसुलिन लेवल बढ़ेगा तो फिर मोटापा भी होगा, फिर बुढ़ापा भी होगा, सही है। और फिर आपका सरापा जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है इन सब चीज़ों से। और लोग उससे में फ्राउनिंग करते हैं ना ऐसे यहाँ पे, तो स्किन पे ऐसे लोगों की ना क्रीजेस पड़ जाती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, अपनी फ्राउनिंग बिल्कुल ठीक करो, रिलैक्स हो जाओ, नॉर्मल करो फेस, वरना क्रीजेस पड़ जाएंगी स्किन पे। तो अब ये टिप फॉलो करके देखिएगा, हंसी आ जाती है दूसरे को, तो आपका मूड भी बेटर हो जाता है। और जब मूड बेटर होता है तो हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में से रिलीज़ होते हैं। तो उनसे कहें कि क्यों कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाएं, ठीक है। छोड़ें लड़ाई झगड़ा, मूड सही करें, है ना। और कसूर ना भी होना तो सॉरी कर लिया करें, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। सॉरी करने से कोई किसी की इंसल्ट नहीं होती, सही है ना। हम अपने प्यारों के साथ इतना तो कर सकते हैं ना। और जब हम दूसरों का ख्याल करते हैं ना, दूसरों के साथ हम अच्छे तरीके से डील करते हैं, दूसरों को अच्छे तरीके से रखते हैं, तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि हैप्पी हार्मोन है, जो कि आपको यंग भी रखता है और हैप्पी भी रखता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना स्ट्रेस मैनेज करेंगे तो कॉर्टिसोल लेवल भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। नींद भी अच्छी आएगी, और आप एक्सरसाइज से भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3 एक्सरसाइज की बात आई है तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है। एक्सरसाइज तो मैं कहती हूँ कि एंटी एजिंग है। वो एंटी एजिंग कैसे है कि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन वही वाला हार्मोन है जिसके लिए मैं बात करती हूँ कि वो सोने में भी रिलीज़ होता है। जब आप रात की नींद लेते हैं तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, वो फैट बर्न भी करता है और वो आपको यंग भी रखता है, ठीक है। वो आपकी वो एंटी एजिंग हार्मोन है, सही है। आपके मसल्स को भी वो स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसका जो है वो, और किस तरह से हम इसे बढ़ा सकते हैं, नंबर 4 पे आ जाता है फास्टिंग। जब आप फास्टिंग करते हैं, जब आप रोज़ा रखते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं, जैसे मुझे किसी ने कहा कि ज़्यादा भूखा रहने से तो डॉक्टर साहबा इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन ज़्यादा भूखा रहने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हो सकती है? ज़्यादा भूखा रहने से इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होती है, ठीक है, फास्टिंग से फिक्स होती है। और फास्टिंग में ये क्या होता है कि आपके जो जब बहुत ज़्यादा देर का आप फास्ट करते हैं ना, तो उसमें आपका जो बॉडी का जो ऑटोफेजी का जो सिस्टम होता है ना, वो जनरेट हो जाता है। ऑटोफेजी में ये क्या होता है कि जो भी आपके फाजिल मादे होते हैं, फासिद मादे होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो बॉडी जो है वो ख़ुद ब खुद खाना शुरू हो जाती है उनको, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा देर के लिए फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे की, 18 घंटे की, ओमैड अगर कोई करता है जैसे 20 घंटे की, 23-24 घंटे की, जो 23 घंटे की जो फास्टिंग होती है, तो उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो ऑटोफेजी में चली जाती है और जितने फ्री रेडिकल्स हैं वो उसको खुद खाना शुरू हो जाती है, तो आपका बॉडी का सिस्टम फिर से फ्रेश हो जाता है। तो ये, और उसमें भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन फास्टिंग में हद से ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए अगर हम सिर्फ यही कर लें ना कि हफ्ते में सुन्नती तरीके के साथ 2 रोज़े रख लें, तो भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हम करें। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक और फॉर्म ये भी होती है कि आप बिटवीन मील स्नैकिंग ना करें। ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कहलाती है कि आपने 3 मेन मील्स लिए, ठीक है। वो किस तरह से लेने हैं वो भी मैंने आपको बताना है कि उससे पोषण कंट्रोल करके कम क्वांटिटी में और कम से कम जिससे ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़े, तो वो बताना है, ताकि हम इंसुलिन को बर्डनाइज ना करें, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया था।
तो वो स्नैकिंग भी ना करना, ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ठीक है। 3 मेन मील्स लें अपना आराम से, और हफ्ते में 2 दिन आप जो सुन्नती तरीके से जो हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस किया करते थे वो आप रोज़े रख लें। वो जुमेरात को रखते थे, पीर को रखते थे। अच्छा, जुमेरात को ये होता है कि थर्सडे को ये होता है कि वीकेंड स्टार्ट होना होता है, आपने अपनी फैमिली के साथ आउटिंग होती है, डाइन आउट करते हैं, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। फिर पीर को अगर आप रखेंगे तो फिर जो आपने वीकेंड पे जो ज़रा थोड़ी सी अनहेल्दी चीज़ें वहाँ रखाई होंगी तो रोज़ा रखने से वो सारा बैलेंस हो जाएगा। तो इसके पीछे देखें ये साइंस है, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ जो इस्लाम में है ना, वो अल्लाह ताला ने उसमें हमारे लिए ही फ़ायदा डाला हुआ है, उसमें हमारी लिए ही हिकमत डाली हुई है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 5 पे आ जाती है, आपने एक विटामिन की टैबलेट लेनी है जो कि फ्री मिलती है दुनिया में, और उसे बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेना ही नहीं चाहते, ठीक है। और वो विटामिन की टैबलेट है सनलाइट, वो फ्री में मिल रही होती है और हम उसे इग्नोर करते हैं। आपको पता है सनलाइट जो है वो आपकी जब बॉडी पे पड़ती है, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि फजर से लेके 8-9 बजे तक की जो सनलाइट होती है ना, उसमें जो यूवी रेज होती हैं, वो सन रेज होती हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। उसके बाद की जो होती हैं वो तो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। तो उसमें तो अगर आप निकलें तो आपको चाहिए कि आप सनस्क्रीन लगाएं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगी। लेकिन ये है कि आपने फजर से लेके अर्ली मॉर्निंग से लेके 8 से 9 बजे तक की सनलाइट लेनी है। उससे आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होती है। जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो आपको 1000 बीमारियों से बचते हैं। डायबिटीज़ नहीं होती, डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर जैसी बीमारियां जो होती हैं वो सनलाइट से ट्रीट हो जाती हैं। आपको पता है कि सनलाइट कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। जैसे मैंने अपनी 6 मॉर्निंग हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर की थी, माशाल्लाह से सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसको, तो उसमें भी मैंने जिक्र किया था। और सनलाइट लेने से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, वो भी एंटी एजिंग हार्मोन है, फैट भी बर्न करता है, डोपामीन रिलीज़ होता है, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, जो कि हैप्पी हार्मोन्स है, एंटी एजिंग हार्मोन्स हैं, ठीक है। और जो हमारा जो सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना हार्मोन मेलाटोनिन, जब सन रेज हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो मेलाटोनिन बनता है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी रात की अच्छी स्लीप के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो देखें कितनी बड़ी नेमत है, कैसी कैसी चीज़ें, कैसे कैसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं सिर्फ 5 से 10 मिनट की सनलाइट के थ्रू। सोचें, सोजिश कम हो रही है, इन्फ्लेमेशन आपकी ख़त्म हो रही है सनलाइट लेने से, तो आप इतनी सारी बीमारियों से बचते हैं और कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं सनलाइट लेने के। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। अच्छा जी, डाइट में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, डाइट में हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।